Das. Shifting focus to Bangladesh now, where Dhaka University has renamed Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Hall as Shaheed Sharif Osman Hadi Hall. Days after prominent student activist and Inqilab Munch convener Sharif Osman Hadi died in Singapore on December 18th while undergoing treatment for gunshot wounds sustained in an attack in Dhaka. Reportedly, students and hall union leaders replaced the hall's nameplate on Friday, followed by authorities removing Sheikh Mujibur Rahman's signage and graffiti from the building on Saturday, a move that has triggered protests and debate among students. My colleague Rainik Datta once again joins us on the broadcast on this story. Rainik, it seems ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में सारा मुजीबुर रहमान का लेगेसी को इरेज करने की कोशिश किया जा रहा है. अभी ढाका यूनिवर्सिटी के बंगाबंधु हॉल का नाम चेंज करके शहीद ओस्मान हादी हॉल रख दिया गया. एकदम देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार बांग्लादेश में यही देखने को मिला था कि जो शेख मुजीबुर रहमान उनका जो नामो निशान वो मिटाने का कोशिश किया जा रहा था. और लगातार अगर देखा जाए तो इसके पहले भी शेख मुजीबुर रहमान का जो घर है उन घर के ऊपर भी हमले का घटना घटाया गया था. उसके बाद अभी जैसा कि देखने को मिल रहा है कि हादी का मौत के बाद अभी बंगबंधु का जो नाम का हॉल है उस हॉल का नाम भी चेंज किया जा रहा है. बंगबंधु का नाम हटाकर हादी का नाम रखा जा रहा है. तो इसमें एक बात तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में अभी किसी भी हालात पर शेख मुजीबुर रहमान का जो नामो निशान वो मिटाने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि प्रोटेस्टर जो थे उनकी तरफ से भी शेख मुजीबुर रहमान के घर के ऊपर हमला किया गया था, घर को तोड़फोड़ किया गया था. और उसके बाद अभी हादी का नाम बंगबंधु के नाम की जगह पर लगा देना एक बात तो साफ हो चुका है कि एकदम बांग्लादेश में जो हालात में एकदम बदल आ चुका है. और इसमें एकदम कट्टरपंथियों का जो राज वो देखने को मिल रहा है. और जो देश को स्वाधीन किए थे, जो बांग्लादेश को तैयार किए थे, उसी शेख मुजीबुर रहमान को अभी नामो निशान मिटाने का जो कोशिश वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है. Rainik, I request you to please stay on with me. Now, with the final prayers for the funeral service for Sharif Osman Hadi concluding in Bangladesh's Dhaka University campus on Saturday, the organization rallied towards the Shahbag area, issuing a 24-hour ultimatum to the country's home ministry, demanding a report on the progress of arrests of the killers of Osman Hadi. From early morning, mourners arrived in groups at Manik Mia Avenue to pay their final tributes to Hadi, along with some draping themselves in the country's national flag, while others chanted slogans demanding justice for Hadi's killing. Following the funeral, the Moncho demanded Bangladesh's Home Affairs Advisor, retired Lieutenant General Jahangir Alam Chaudhry, and the Chief Advisor's Special Assistant in the Home Ministry, Khoda Baksh Chaudhry, provide a report on the progress of arrests of the killers of Hadi, and warned that failure to respond would result in their resignation. According to reports, the member secretary of Inqilab Moncho issued an ultimatum to government officials. Al-Jaber presented two demands. He called on the Home Affairs Advisor and Assistant Advisor to report publicly on the progress made on Hadi's killings in the past week, and warned that if no response is received within 24 hours, they must resign. He also urged the authorities to identify and arrest Awami terrorists allegedly hiding within civil and military intelligence agencies. रैनिक, अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जस्टिस की मांग करी जा रही है. इसमें इनकलाब मोर्चों के हेड जो थे ओस्मान हादी की डेथ को लेके होम अफेयर्स को भी जो बांग्लादेश में अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी बताए कि क्या अपडेट रहा है किलर्स को फाइंड करने में. लेकिन देखिए, उस्मान हादी का ये मौत के बाद ही प्रोटेस्ट जो है वो भड़का था. और कल जब उस्मान हादी का फ्यूनरल चल रहा था, ठीक उसी टाइम पर जनाजे का नमाज के टाइम पर ही ये डिमांड किया गया कि 24 घंटे के अंदर जो लोग इसमें शामिल है, जो लोग उस्मान हादी के कत्ल के पीछे कातिल है, उनको पकड़ना पड़ेगा. और उसके साथ साथ ही 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट को दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर ही कौन कौन इस पूरे घटना के अंदर
शामिल है उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, या तो जो होम मिनिस्ट्री है उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा भी डिमांड किया गया है। यानी प्रोटेस्ट अभी भी जारी है बांग्लादेश में। लगातार जो प्रोटेस्ट का डिमांड वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ ही इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं ये प्रोटेस्टर्स। रैनिक एडिशनली स्टेटस क्या है इस इन्वेस्टिगेशन का? क्या पुलिस को कुछ भी पता चल पाया है कि कौन थे वो लोग जो इस सबके पीछे इन्वॉल्व है? देखिए, पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि सेवरल सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से कलेक्ट किया गया है, और बहुत सारे आई विटनेसेस जो है उनको भी पूछताछ किया गया है, और एक बाइक से 2 लोग आए थे ऐसा पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आया है, और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से बाइक का नंबर ट्रेस किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही जो आई विटनेसेस है और सीसीटीवी फुटेजेस है उनको ढूंढकर ये दो कौन थे इनको आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे ये आम जनता के साथ मिल चुके हैं, और इसी वजह से उनको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है। All right, Rainik, thank you for sharing all that information with us. Shifting focus now, in breaking news, US forces have intercepted an oil tanker